Hello students, all of you are welcomed in Akanksha classes. I am your Sushil sir and you are watching chemistry class 10th chapter 1 chemical reaction and equations part 7. That is the last part of this lesson. Students, the first topic of this video is correlation. Correlation, the process of slowly eating up of the metals due to attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide and water in the form of steam etc. on the surface of the metal so as to convert the metal into oxide, carbonate and sulfide etc. is called correlation. For example, 3Fe in solid state plus 3/2 molecule of oxygen in gas state plus X molecules of water in liquid state, water vapor, arrow Fe2O3, ferric oxide dot X2O in solid state and 2Ag for solid state plus hydrogen sulfide in gaseous state, arrow Ag2S in solid state plus hydrogen gas. Same way, 2Cu in solid state plus CO2 in gas state plus O2 in gas state plus H2O in gas state, arrow CuCO3 dot CuOH का whole twice in solid state. Now methods to prevent rusting are given below. Students, by painting surface of metal, by greasing and ironing, and by galvanization. Students, we see so many examples of oxidation and reduction in our daily life. Rancidity and corrosion are two of them. Rancidity, the oxidation of oils and fats in food resulting into a bad smell and bad taste is called rancidity. Some methods to prevent rancidity are given below. By adding antioxidants to the food stuff. Number 2, refrigeration of the food stuff. Number 3, vacuum packing. And number 4, replacing the air around the food stuff by N2 nitrogen gas etc. Students, corrosion and rancidity are example of redox reaction. Rusting is a serious problem for iron objects. Reactivity series or activity series of metals on the basis of their reactivity
reactivities, displacement, reaction and their electrode potentials. Metals are arranged in decreasing order of their reactivity. This arrangement of metals is known as reactivity series or activity series of metals. Lithium is more reactive than potassium, is more reactive than beryllium, is more reactive than calcium, is more reactive than sodium, is more reactive than magnesium, is more reactive than aluminum, is more reactive than zinc, is more reactive than iron, is more reactive than nickel, is more reactive than tin, is more reactive than lead, is more reactive than hydrogen, is more reactive than copper, is more reactive than para, is more reactive than mercury, is more reactive than silver, is more reactive than platinum, is more reactive than gold. Now students, I want to explain all the topics written on the board in Hindi. So proceed. Corrosion, जंग लगना. Students, corrosion is also a form of oxidation. The process of slowly eating up of the metals due to attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide and H2O, etc. on the surface of the metal so as to convert the metal into oxide, carbonate and sulfide, etc. is called corrosion. Students, मेटल्स को वायुमंडलीय गैसों जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और भाप के हमले से धातुओं को धीरे धीरे क्षरण करने की प्रक्रिया जो धातुओं के जो मेटल्स के सरफेस को धीरे धीरे खाते रहते हैं और मेटल को ऑक्सीजन अटैक करके ऑक्साइड में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेटल्स पे अटैक करके मेटेलिक कार्बोनेट में बदलता है और हाइड्रोजन सल्फाइड मेटल्स के सरफेस पे अटैक करके उस मेटल को सल्फाइड में बदलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. यहाँ पर H2O वाटर अटैक करके यह भी हमारे हाइड्राइड और हाइड्रो ऑक्साइड में बदलता है. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार कार्बोनेट यानी ऑक्सीजन ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट में, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि में बदलने की प्रक्रिया को क्रोशन अर्थात जंग लगना कहा जाता है. एग्जाम्पल के लिए, जब आयरन ऑक्सीजन और जलवाष्प, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आयरन अगर एक्सपोज है उसका सरफेस और आयरन के कांटेक्ट में जब ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेरिक गैसें हैं, और जलवाष्प इसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन का रिएक्शन दिख रहा है हमको. यहाँ पे Fe अकेला है, आयरन अकेला है और यहाँ पे Fe के साथ क्या जुड़ गया यहाँ ऑक्सीजन. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया है? हाइड्रोजन आ गया है. तो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड
रिडक्शन। तो यहाँ पर आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन इन्होंने हाइड्रोजन को गेन किया तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। अब देख लेते हैं यहाँ पे H2O है, तो H2O यहां भी था, यहां भी है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। अब हम सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सिल्वर प्लस हाइड्रोसल्फाइड क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस। यहां पे हम देखते हैं सिल्वर कोई दिक्कत नहीं आई, सल्फाइड आया। यहाँ पे देखिए सल्फाइड के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया सल्फाइड से, तो क्या हुआ यहाँ पे, लॉसिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हम कह सकते हैं सल्फर का क्या हुआ है, सल्फर का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कॉपर में, तो जब कॉपर पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प का अटैक होता है तो क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ध्यान देखिए, कॉपर यहाँ दिख रहा है आपको, कॉपर यहाँ पे कॉपर अकेला है, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ भी कॉपर का ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार क्रोशन और रेनसिडिटी ये दोनों हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपक्रियाओं पर, रिएक्शंस पर आधारित हैं। स्टूडेंट्स यह क्रोशन स्पेशली विशेष करके आयरन की बनी हुई वस्तुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आयरन के बने हुए पिलर, आयरन के बने हुए बर्तन, आयरन के बने हुए टूल्स को आपने देखा होगा, फावड़ा, खुरपा, कुदाल, अगर इनको हम ओपन में रख देते हैं तो इनमें जंग लग जाते हैं, और यही जंग ही हमारा क्रोशन है। तो स्टूडेंट्स वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन। तो हमें आयरन से बनी हुई चीजों को बचाना बहुत मस्ट है। तो उसके लिए हम कुछ तरीके, विधियां यहाँ पे दे रहे हैं। अब जंग लगने से बचाने की विधियां नीचे दी गई हैं। कौन सी दी गई हैं, बाय पेंटिंग सरफेस ऑफ मेटल। आपने देखा होगा अक्सर लोहे की चीजों को पेंट कर दिया जाता है, शटर, दरवाजे लोहे के आपने पेंट करते हुए देखा होगा, इसलिए पेंट किया जाता है जिससे ये एटमॉस्फेरिक गैसें और वायु में मौजूद, एयर में मौजूद ह्यूमिडिटी सीधे आयरन की सरफेस पर अटैक न कर पाए और रस्टिंग से बचा रहे। यहाँ पे मैंने एक और वर्ड यूज किया है, रस्टिंग। तो बहुत तेजी से जंग लगकर लोहे का पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाना रस्टिंग कहलाता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, पेंट लगाने से आपने देखा होगा आयरन के ऑब्जेक्ट्स की आयु बढ़ जाती है, लंबे समय तक उनमें जंग नहीं लगता। तो फर्स्ट मेथड हमारा, हम आयरन की क्या रुक गया था, आयरन की बनी हुई वस्तुओं के सरफेस को पेंट करके बचाते हैं। दूसरा मेथड है हमारा बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। तो स्टूडेंट्स अगर हम आयरन की बनी हुई या अदर मेटल की बनी हुई ऑब्जेक्ट्स के सरफेस पर ग्रीसिंग कर दें, ग्रीस लगा देते हैं या ऑयलिंग कर दें, तेल लगा देते हैं, तो
उन पर जंग नहीं लगता, क्योंकि सीधे एटमॉस्फेरिक गैसेस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ पाती। और एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में वह ग्रीस की लेयर या ऑयल की लेयर प्रोटेक्ट करती रहती है। स्टूडेंट्स, थर्ड मेथड हमें दिया है बाय गैल्वेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें मोस्ट या मोर रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, उन मेटल्स की सरफेस पर ऐसे मेटल्स की एक पतली लेयर को मेल्ट करके चढ़ा दिया जाता है जो ऑक्सीजन से कम रिएक्शन करते हों। तो ऐसा हमारा मेटल है जिंक। कौन सा मेटल है? जिंक। तो स्टूडेंट्स, इसमें आयरन की बनी हुई वस्तुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, अर्थात उन पर जिंक को मेल्ट करके एक पतली परत जिंक की चढ़ा जाती है। यह पूरी प्रोसेस हमारी इंडस्ट्रीज में संपन्न किए जाते हैं। आप डिटेल के लिए बिल्कुल व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन डाल करके आप नेट से देख सकते हैं, पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। अब आपने गाड़ियों की रिम या साइकिल की हैंडल जरूर देखा होगा चमकते हुए, ये गैल्वेनाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। हम आगे देखते हैं रेंसिडिटी। आप जानते हैं खराब हो जाना, बासी हो जाना। द ऑक्सीडेशन ऑफ आयल्स एंड फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इनटू ए बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो स्टूडेंट्स, भोजन में मौजूद फैट, वसा अथवा तेल का भी ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में लंबे समय तक तेल या डालडा या किसी फैट की में बनी हुई चीज़ें रखी होती हैं, तो कुछ समय बाद उनसे एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती है और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह फैट या वह ऑयल जिसमें फूड को प्रिपेयर किया गया था ऑक्सीडाइज हो गया है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे यह बैड स्मेल और बैड टेस्ट आ जाता है भोजन में। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को हम या जो भोजन के आयन और फैट ऑक्सीडाइज होते हैं, इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम भोज्य पदार्थों को कैसे बचा सकते हैं? जो आयल में बने होते हैं या जिनमें आयल मिला होता है, उन्हें कैसे बचाएं? इसके लिए हमने कुछ रेंसिडिटी के प्रिवेंट के लिए कुछ मेथड्स दिए हैं नीचे। अब उनमें पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड स्टफ। यहाँ पे एक वर्ड आ गया है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, द सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी आप समझ रहे हो कि एंटी मीन्स होता है विरोध में रहना। तो वे पदार्थ जो ऑक्सीडेशन का विरोध करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम आपको बताता हूं। शुगर सल्फर, सोडियम क्लोराइड, ये हमारे कुछ फेमस एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आप इनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारे घरों में हमारी दादी या हमारी माताजी जब भी पिकल्स अचार बनाती हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में उनमें नमक में मिलाकर सुखाती हैं। उसका कारण ये होता है कि बाद में जब हम उनमें ऑयल डालें तो एंटीऑक्सीडेंट्स पहले से मौजूद रहे, जिससे रेसिडिटी जल्दी ना होने पाए। तो भोज्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाकर हम रेसिडिटी को रोक सकते हैं। नंबर सेकंड हमारा मेथड है
रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ, भोज्य पदार्थों को फ्रिज में रखकर कम तापमान पे रखा जाता है तो भी फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और लंबे समय तक भोजन खराब नहीं होता। थर्ड है वैक्यूम पैकिंग। इसमें वैक्यूम पैकिंग क्या होता है आप समझते हैं। एक एग्जांपल, अमूल दूध पीता है इंडिया, आप जानते हो इसी मिल्क को अगर आप ओपन में रखते हो तो मैक्सिमम 24 आवर्स चलना भी मुश्किल हो जाता है और दूध मिल्क हमारा साउर हो जाता है, उसके बाद खराब हो जाता है। लेकिन इसी मिल्क को जब हम वैक्यूम पैकिंग में पैक करते हैं या तमाम एडिबल्स आते हैं लाइक कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, चिप्स, इनकी पैकिंग करते समय वैक्यूम कर जाता है और इनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और कुछ पैकिंग सिरका अचार जो बोतलों में पैक किए जाते हैं इनमें वैक्यूम कर जाता है जिससे किसी भी प्रकार की एटमॉस्फेरिक गैसें इनके कांटेक्ट में ना आए और इनका ऑक्सीडेशन ना हो। स्टूडेंट्स, फोर्थ मेथड है रिप्लेसिंग द एयर अराउंड द फूड स्टफ बाय N2 नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया जो हमारे फूड स्टफ कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े और चिप्स के बारे में, इनमें क्या किया जाता है, इनमें पैकेट से अदर गैसों को हटा लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है, केवल और केवल N2 ही भरा जाता है जिससे ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे ही नहीं तो ऑक्सीडेशन कैसे होंगे। यानी सीधे सीधे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा ऑक्सीजन ना होगा ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं जो क्रोसिन और रेंसिडिटी है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और रस्टिंग यानी जंग लगना लोहे की वस्तुओं के लिए बहुत गंभीर समस्या है। स्टूडेंट्स, उपरोक्त जो बोर्ड पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं ये इसलिए लिखे हुए दिख रहे हैं जिससे आप नोट्स आसानी से बना लें। अब आगे आते हैं हम। स्टूडेंट्स, कुछ टर्म हमारे बचे हुए हैं, वो है हमारे प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन इन विच ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस गिव इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो लिक्विड स्टेट के रिएक्टेंट्स मिक्स होकर साथ में आकर अभिक्रिया करके रिएक्शन करके अघुलनशील ठोस देते हैं, उस अभिक्रिया को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन या अवक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इसको सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिड और बेस चैप्टर में, क्योंकि अभी हम आपको ये नहीं बताए हैं एसिड और बेस के बारे में। स्टूडेंट्स, हम आगे रहते हैं इस चैप्टर में। क्या एर्थ में भी हमने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज, एक बार रिवाइज के लिए, रिएक्टिविटी सीरीज अथवा एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, on the basis of their reactivities, displacement reaction and their electrode potentials। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने यूज किया है एक वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसके बारे में आपको हायर क्लास में मैं बताऊंगा। इसके बारे में जानने के लिए देखते रहिएगा आकांक्षा क्लासेस और केमिस्ट्री क्लास 12 का देखिएगा, उसमें मैं ये जरूर बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अब अपनी
अब क्रियाशीलता के आधार पर मेटल्स को उनकी अब क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है या किया जाता है, और यही मेटल्स की यही व्यवस्था मेटल्स का एक्टिविटी सीरीज अथवा रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं स्टूडेंट्स। या अब हम आपको आपने क्लास 8 में देखा था वर्टिकल ड्रा किया था, लेकिन हमारे पास स्पेस कम होने का हमने ड्रा कर दिया है। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे तो ये आपको याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स, आओ कोई एग्जाम्पल हो जाए इस रिएक्टिविटी सीरीज के लिए। चलिए, हो जाता है, क्या बनाते हैं हम ले लेते हैं पोटेशियम प्लस H2SO4। स्टूडेंट्स, इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और इनके प्लेस पे खुद आ जाएगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो बन जाएगा K2SO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखा कि पोटेशियम ने हाइड्रोजन को डिलीट कर वहां से भगा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आप एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। और आप बताइए ये रिएक्शन कैसा होगा। जिंक प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड है, जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड सॉरी, हम जिंक नहीं लेना चाहते, हम ले रहे हैं कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड एरो। रिएक्शन होगा या नहीं बताएं। यहां पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, रिएक्शन होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के कंपाउंड में से कैल्शियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम का प्लेस खुद ले लेगा, तो क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 प्लस 2Al प्लस 2Al ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैल्शियम 3 सल्फर, यहाँ 1 सल्फर, तो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ भी 3 लिख देते हैं। अब चेक करते हैं बैलेंसी। 3 कैल्शियम 2 एल्यूमिनियम 4 3 12 ऑक्सीजन
4 × 12 ऑक्सीजन और 3 सल्फर, यहाँ भी 3 सल्फर, दैट इज अ बैलेंस। बट स्टूडेंट्स अगर हम इसका अपोजिट कर दें तो बताएं क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम लेते, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते कैल्शियम सल्फेट का, अब बताइए रिएक्शन होगा नहीं होगा? नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अब यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अगर चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो बिल्कुल हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बाकी केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड एंड बेस पढ़ेंगे पार्ट 8 में, लेकिन 3-4 दिन गैप के बाद। अभी इसके बाद आप फिजिक्स पाएंगे, लेसन इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो, आज आप वीडियोस पाएंगे कल से। तब तक बाय।